ویو 360 میں امریکی صدارتی انتخابات ایک ہفتے کے بعد کورونا کی عالمی وبا پر دونوں صدارتی امیدواروں کی پالیسیز مرکز نگاہ۔ افغانستان میں امن مذاکرات کے حوالے سے افغان رہنما کے خیال میں پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے؟ ایک آنکولوجسٹ نے تو مجھے کہا کہ آپ کی 2 سے 3 ہفتے کی زندگی ہے۔ اور مردوں میں چھاتی کے سرطان کی کیا علامات ہیں اور اس کا طریقہ علاج کتنا مختلف ہے؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی انتخابات سے ایک ہفتہ پہلے صدر ٹرمپ کی جانب سے سپریم کورٹ کے لیے نامزد کی جانے والی جج ایمی کونی بیرٹ کی تعیناتی کے لیے سینٹ میں ووٹنگ آج ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی نے ان کی نامزدگی کی منظوری دی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا 48 سالہ جج سینٹ سے منظوری حاصل کر پائیں گی۔ چلتے ہیں کیپٹل ہل ندیم یعقوب کے پاس۔ ندیم، کیا ریپبلکن اکثریت والے سینٹ میں ایسا کوئی امکان ہے کہ صدر ٹرمپ کی پارٹی کے کوئی اراکین اس تعیناتی کے خلاف ووٹ دیں؟ اسد، صرف ایک جو ریپبلکن پارٹی کی رکن ہیں سینیٹر سوزن کالنز، وہ کہہ چکی ہیں کہ وہ اس منظوری کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گی۔ اس کے باوجود ریپبلکن پارٹی جو ہے ان کو چونکہ سینٹ میں اکثریت حاصل ہے، 53 ان کے اراکین ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس جو ہیں ان کے صرف 47 اراکین کی تعداد ہے، تو وہ بآسانی جو ہے منظوری حاصل کر سکیں گی۔ سر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ اپنی جو مدت ہے ان کی پچھلے 4 سال میں یہ تیسری جج ہیں جس کو انہوں نے نامینیٹ کیا سپریم کورٹ کے لیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ریپبلکن پارٹی کے لیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی جو 9 جج ہیں ان میں سے 6 جو ہیں وہ قدامت پسند نظریات کے حامی جج وہاں پر ہو جائیں گے۔ ریپبلکن پارٹی چاہتی ہے کہ یہ جج جو ہے ان کی نامینیشن ہو جائے، وہ تعینات ہو جائیں۔ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ جو آئندہ صدر ہوگا، جو بھی صدر بن کر آئے، اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کی خالی نشست پر جج کو تعینات کریں۔ جی حسن، بہت شکریہ ندیم یعقوب آپ کا۔ سینٹ میں سرٹنلی جو اکثریت ہے وہ اگلے الیکشنز کے بعد کس کروٹ بیٹھتی ہے وہ ابھی تک دیکھنا باقی ہے، اور اسی حوالے سے شاید ندیم بتا رہے تھے کہ ریپبلکنز جو ہیں چاہتے ہیں کہ اسی ڈیوریشن میں وہ اپنا جج جو ہے نامینیشن جو انہوں نے دی ہے صدر ٹرمپ نے اس کو فائنلائز کر لیں۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق کم از کم 35 امریکی ریاستوں میں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ کرونا کی عالمی وبا سے نمٹنے کے اقدامات ایک ایسا معاملہ ہے جو امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ معاملہ مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور عام طور پر ایسے تمام ایشوز پس منظر میں چلے جاتے ہیں یا اس وقت چلے گئے ہیں جو ماضی میں انتخابات میں حاوی ہوا کرتے تھے۔ فلوریڈا میں بزرگ شہریوں کے ساتھ ایک ریلی میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کا خاتمہ نزدیک ہے اور ویکسین کی تیاری بھی۔ آج امریکہ کے بزرگ شہریوں کے لیے میرا پیغام مثبت خیالی، اعتماد اور امید کا ہے۔ آپ کی قربانی ضائع نہیں گئی۔ اندھیروں کے بعد اب روشنی قریب ہے۔ ہم اس وبا کا رخ موڑ رہے ہیں۔ ان کے حریف جو بائیڈن کی جانب سے صدر پر وبا کے خطرے کو کم کر کے پیش کرنے کی الزام تراشی جاری ہے۔ رخ موڑ رہے ہیں؟ او میرے خدایا، یہ وبا ختم نہیں ہو رہی، یہ دوبارہ بڑھ رہی ہے جیسے کہ پیشگوئی کی گئی تھی۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں کرونا کی وبا سے اب تک تقریباً 2,20,000 اموات واقع ہوئی ہیں۔ معاشی کساد بازاری ہوئی ہے اور اس نے کسی حد تک ان روایتی نظریاتی ایشوز کی جگہ لے لی ہے جو ماضی میں انتخابات میں حاوی ہوا کرتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وبا نے آزاد تجارت، امیگریشن، صحت عامہ، ماحولیاتی تبدیلی، اسقاط حمل کے حقوق اور گن کنٹرول جیسے مسائل کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ کووڈ-19 نے ان مسائل کو دبا دیا ہے۔ یہ اب بھی موجود ہیں، لیکن یہ ایک نئے مسئلے کی طرح ہیں جو پہلے موجود نہیں تھا، اور اب یہ ان اہم امور میں سے ایک ہے جو طے کرتے ہیں کہ امیدوار کہاں کھڑے ہیں اور لوگ کیسے ووٹ دیتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس وبا سے نمٹنے کے اقدامات نے اس معاملے کو جماعتی بنیادوں پر متنازع بنا دیا ہے۔ ریپبلکنز نے اس وائرس پر قابو پانے کے لیے سخت معاشی لاک ڈاؤن کی مخالفت کی ہے، اور وہ ماسک پہننے اور سماجی فاصلے جیسے احکامات کے حوالے سے انفرادی حقوق کو فوقیت دیے جانے پر زور دے رہے ہیں۔
चाहे ये मास्क पर होने वाली गुफ्तगू हो या इस हद पर जहाँ तक हुकूमत को पब्लिक सेफ्टी या हमारी जिंदगी के दूसरे पहलुओं में मुदाखलत करनी चाहिए या नहीं, हम इसका असर देख रहे हैं। इसके बरक्स जो बाइडन और डेमोक्रेट्स माशरे में इज्तिमाई जिम्मेदारी पर जोर दे रहे हैं ताकि इन्फेक्शन की शरह को कम किया जा सके और कारोबारी सरगर्मियां दोबारा शुरू की जा सकें। अवामी राय के जायजों में नुमाया सबकत रखने वाले जो बाइडन की तवज्जो इन इंतखाबात को कोरोना बहरान में सदर ट्रंप की कारकर्दगी का एक रेफरेंडम बनाने पर है, जबकि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम कोरोना से पहले की अमेरिका की मजबूत मईशत पर रोशनी डाल रही है और इस वबा के खात्मे के बाद तेजी से बहाली का वादा कर रही है। ब्रायन पेरन के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। 2020 के इन अहम सदारती इंतखाबात में कोविड से निमटने के तरीक़ाकार पर दोनों सदारती उम्मीदवार बटे हुए हैं। कोविड-19 का असर खुद इन दोनों उम्मीदवारों की सियासत पर क्या पड़ा, इस पर इरम अब्बासी ने बात की वॉइस ऑफ अमेरिका की सीनियर नुमाइंदा कैरोलिन प्रसूटी से, जो कि दोनों सदारती उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम कवर कर रही हैं, और जानने की कोशिश की कि कोविड-19 से अमरीकी सियासत कैसे मुतासिर हुई है। Severely. I don't think I've ever seen any campaigns like this during my entire career. शदीद असर हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपने पूरे सहाफती करियर के दौरान इस तरह की इंतखाबी मुहिम कभी देखी हो। वबा ने यकीनी तौर पर इंतखाबी मुहिम को मुतासिर किया। साबिक नायब सदर जो बाइडन ने बहुत सारी तकरीबात ऑनलाइन की। उन्होंने इंतखाबी कैंपेन के लिए चंदा इकट्ठा करने की ऑनलाइन मुहिम अपने घर से चलाई। अब वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ, जबकि आपको मालूम है कि सदर तो कोविड से मुतासिर हुए हैं। इस दौरान वो व्हाइट हाउस में बंद होकर रह गए थे और कुछ नहीं कर सकते थे। अब यहाँ सब जब इमारतों के अंदर जाते हैं तो मास्क पहना होता है। आप मेरा रिस्ट बैंड देख सकते हैं, जिससे जाहिर होता है कि मेरा टेस्ट मनफी आया है, जिसके बाद हमें दाखिले के लिए इजाजतनामे दिए गए हैं। कैरोलिन, क्या आपको लगता है कि कोविड ने कुछ ऐसे मसाइल की अहमियत को भी कम कर दिया जिस पर वोटर्स के ख्याल में ज़्यादा बात होनी चाहिए थी और इन इंतखाबात के दौरान उन पर ज़्यादा बात नहीं हो पाई क्योंकि कोविड था? Absolutely, good question. बिल्कुल, मैंने कल शायद 10 या 20 वोटर्स से बात की थी और तकरीबन हर शख्स ने इंटरव्यू में कोविड पर बात की। 2 बच्चों की मां ने बताया कि वो कोविड की वजह से घर पर ही बच्चों को पढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो गौर से उम्मीदवारों को सुनती हैं ताकि उनसे वैक्सीन की दस्तयाबी के बारे में मालूमात मिले। एक और खातून ने कहा कि उन्होंने 2016 में ट्रंप को वोट दिया था, मगर इस बार उन्हें वोट नहीं देंगी क्योंकि वो वबा से निमटने के लिए उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। एक और शख्स ने कहा, वो उनको वोट दे रहे हैं क्योंकि मुझे यकीन है कि वो इस वबा के बारे में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ आरा सुनने को मिल रही है। म्यूजिक के एक माहिर ने मुझसे बात करते हुए कहा कि उन्हें तवक्को नहीं कि मौसीकी के बहुत से खुद मुख्तार कारोबार इस माह के बाद बरकरार रह पाएंगे, लिहाजा हमने पहले ही बहुत बड़ा वोटरों का टर्न आउट देखा है और हम नवंबर में इंतखाबात के दिन भी बड़ी कतारें लगने की तवक्को कर रहे हैं। So, Caroline, we've already seen a huge voters turnout. वोटरों की बड़ी तादाद की बात की आपने, तो क्या आपको लगता है कि ये भी कोविड की वजह से मुमकिन है? Yes, I do. 2 points though. जी बिल्कुल ऐसा है। क़ब्ल अज़ इंतखाबात वोट डालने वालों की बड़ी तादाद में खुद जाकर और डाक के जरिए वोट डालने वाले भी शामिल हैं, क्योंकि लोगों को इलेक्शन वाले दिन पोलिंग सेंटर्स पर भीड़ की फिक्र है। ताहम इलेक्शन से पहले इस मौके पर इतना बड़ा वोटर्स टर्न आउट हमने पहले कभी नहीं देखा। तो हाँ, कोविड की वजह से भी ऐसा है, लेकिन ये इन इंतखाबात के बारे में जोश और खरोश भी हो सकता है। हो सकता है कि इसकी वजह लोगों को अपने अपने उम्मीदवार के लिए पुरअज़्म होना हो। इनमें बाइडन के हामी भी हैं और ट्रंप के हामी भी हैं, और वो इस बारे में बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं कि ये इंतखाब कैसे जीतना चाहिए। तो ये भी एक और सबब है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। अमरीकी इंतखाबात समेत दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे possible
तो आंखें खुली रखनी चाहिए। The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Tonight I ordered Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। एक तरफ अफगान अमन के लिए जारी दोहा मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही और दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तशद्दुद का सिलसिला भी मुसलसल जारी है। हफ्ते के रोज़ काबुल में एक तालीमी मरकज़ पर होने वाले खुदकुश बम हमले में 24 अफराद हलाक हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की है। इससे पहले अफगान ह्यूमन राइट्स कमीशन ने तस्दीक की थी कि जुमेरात को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फ़ज़ाई हमले में एक मदरसे के 12 बच्चे हलाक और कई ज़ख्मी हुए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम से एक खुसूसी इंटरव्यू में साबिक अफगान सदर हामिद कारज़ाई का कहना है कि इस साल फरवरी में अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे का मकसद अफगानिस्तान में तनाज़ात और अफगान शहरियों की हलाकतों का खात्मा है। हामिद कारज़ाई का ख्याल है कि अमरीकी इंतखाबात के नताइज का अफगान अमन अमल पर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात के नताइज से मौजूदा अमन अमल पर कोई असर पड़ेगा। नुक्ता नज़र में यह अमल की रफ्तार में फ़र्क हो सकता है, लेकिन अमेरिका के मजमूई हदफ में नहीं, जो अफगानिस्तान में एक समझौते और फौजी दस्तों में कमी का है। सदर ट्रंप ने हाल ही में एक ट्वीट में कहा कि तमाम अमरीकी फौजियों को क्रिसमस तक घर वापस आ जाना चाहिए। क्या इससे दोहा मुज़ाकरात में या काबुल में कोई तब्दीली वाक़ई हुई? ऐसा नहीं हुआ। हम अफगान तनाज़े और अमरीकी मुदाखलत से मुतल्लिक सदर ट्रंप के ख्यालात को जानते हैं। वो फौजियों के इनखला और मुकम्मल इनखला न होने की सूरत में उनकी तादाद में नुमायां कमी और अफगान अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की आज़ादी दिए जाने पर बहुत वाज़े अंदाज में बात करते आए हैं, जिसका हम एहतराम करते हैं। हमें बिल्कुल यही करना चाहिए। क्या आपके ख्याल में फरवरी में अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाली डील अच्छी डील थी? जहाँ तक इस मुआहदे के जरिए अफगानिस्तान में तनाज़ात के खात्मे और अफगान हलाकतों का खात्मा है तो ये ज़बरदस्त है। ऐसा तो पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर अमेरिका का मकसद अफगानिस्तान में किसी समझौते और पायदार अमन का हुसूल है तो ऐसा अमन अमल में नजर आना चाहिए। अमेरिका जो अमन अमल लेकर आया है, हम देख रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के साथ हम आहंगी शामिल है। हम पाकिस्तान के किरदार को समझते हैं, लेकिन हमारे लिए अमन एक अहम चीज़ है और अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन हमारे मुतल्लिक समझौता एक अलग मामला है जिसकी हम मज़ाहमत करेंगे। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकला तो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा ही मुआहिदा था, जिसकी वजह से हम आज इस मुसीबत में हैं। तालिबान और हुकूमत के लिए कौन सा गवर्नेंस मॉडल काबिल कबूल है? अभी दोनों अतराफ की तरजीह ये होनी चाहिए कि वो अफगान अवाम के खिलाफ तशद्दुद को फौरी तौर पर ख़त्म करें। हुकूमत की आइंदा शक्ल या रियासत के ढांचे के बारे में फैसला अफगान अवाम करेंगे, जो तालिबान और अफगान अवाम का इज्तिमाई फैसला है। अगर आपका सवाल हुकूक के बारे में है तो हमारी खवातीन को तालीम देने का हक है और हमारे माशरे को तरक्की का हक है। इस पर समझौता नहीं हो सकता। क्या आप पर उम्मीद है कि अमन अमल कामयाब होगा? बिल्कुल। हम अमेरिका की तरफ से शुरू करदा इस अमल के साथ हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि अमरीकी इस अमल को शफाफियत और मुकम्मल सलाह मशवरे से उन तमाम ताकतों के साथ अंजाम देंगे जो अफगानिस्तान और खित्ते में मफाद रखते हैं। कामयाबी का यही रास्ता होगा। अलबत्ता अमेरिका को पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना होगा। हम इसका खैर मकदम करते हैं। हम इस ज़रूरत को पहचानते हैं। आप अपने लिए मुस्तकबिल में क्या किरदार देखते हैं? एक शहरी जो अफगानिस्तान में अमन कायम करने और अफगानिस्तान को बावकार जिंदगी की तरफ लौटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब तालिबान और अफगान हुकूमत अफगानिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिशों में है, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से मुंसलिक अफराद इस बात पर परेशान हैं कि कल का अफगानिस्तान कैसा होगा। इन्हीं में कई अफगान मौसीकार भी शामिल हैं। इन मौसीकारों को डर है कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उन्हें शायद इसकी कीमत अपने फ़न को खैरबाद कहकर चुकानी पड़े। मौसीकार जावेद परवानी गुज़िश्ता माह अपने फनकार दोस्तों के साथ मामूल की बैठक लगाए हुए थे जब कुछ लोग उनके पास आए। वो काबुल सूबे के एक जिले में शादी की एक तकरीब के लिए उनकी खिदमत हासिल करना चाहते थे। बगराम फिजाई अड्डे के करीब वाक़े कलाकान जिला बाकी मुल्क की निस्बत महफूज ख्याल किया जाता है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि अब यहाँ भी रात को तालिबान गश्त करते नजर आते हैं। जावेद परवानी ने उस पेशकश को कबूल कर लिया। वो पहले भी इस शहर में अपने फन का मुजाहरा कर चुके थे और उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ थे।
रौनक मेला उरूज पर था जब मेरा बेटा और उसके दोस्त यहाँ पहुंचे। उसी वक्त इन्होंने वहाँ मजमे के इर्द गिर्द 20-30 मुसल्लह तालिबान को देखा जिन्होंने सर पर पगड़ियां बांध रखी थी और चेहरे ढांप रखे थे। लोगों ने जो ही इन्हें देखा वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जावेद परवानी अपने साथियों के हमरा बड़ी मुश्किल से वहाँ से फरार हुए, लेकिन तालिबान ने उनके मौसीकी के आलात तबाह कर दिए। मकामी बुजुर्ग बहुत खौफजदा थे। उन्होंने दूल्हा या उसके खानदान को सहाफियों से बात करने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर इन तबाहशुदा आलात की वीडियो हर तरफ फैल गई, जिसने मुल्क भर में ही फनकारों को खौफजदा कर दिया। जावेद परवानी कहते हैं कि इस वाक़े ने उन्हें दारुल हुकूमत काबुल में भी गैर महफूज होने का एहसास दिलाया है। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, हम कैसे खौफजदा ना हो। अगर वो वहाँ ये सब कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं, और अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो हमें कहाँ वो गाने देंगे। मुल्क में बहुत से लोग अब ऐसा ही सोचते हैं। जंग के 40 बरसों के बाद सभी अमन के ख्वाह हैं, लेकिन फनकार बरादरी में ज्यादातर लोग खौफजदा हैं कि इस अमन की कीमत उन्हें अपने रोजगार और फन की सूरत में चुकाना पड़ेगी। इन हालात ने पहले ही जावेद परवानी के काम पर असर डाला है और वो बमुश्किल $250 महाना ही कमा पाते हैं। इस कमाई में उन्हें मौसीकी के आलात दोबारा खरीदने में तकरीबन 2 साल लग जाएंगे। आयशा तंजीम की रिपोर्ट के साथ सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अक्टूबर का महीना दुनिया भर में छाती के सरतान की आगाही के महीने के तौर पर मनाया जाता है। जहां हर साल गुलाबी रिबन को आगाही की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वहीं कुछ सालों से इसमें नीला रंग भी शामिल किया जाने लगा है। नीला रंग मर्दों में छाती के कैंसर की तरफ इशारा करता है। ख़वातीन के मुकाबले में मर्दों में इस बीमारी के हवाले से बहुत कम बात होती है। मर्दों में इस कैंसर की अलामात हैं क्या और इसका इलाज किस हद तक ख़वातीन के इलाज से मुख्तलिफ है, जानते हैं इस्लामाबाद से गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में। एजाज चौधरी की जिंदगी बैनुल अक़वामी सतह के मामलात सुलझाते गुजरी है। वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, मगर इन्हें ब्रेस्ट कैंसर से लड़ना पड़ेगा, इसका इन्हें अंदाजा भी नहीं था। 2013 में इन्हें छाती में तकलीफ महसूस हुई तो डॉक्टरों ने सरसरी इलाज बताया। सीने पर उभरने वाली गिल्टी बढ़ती गई और बिलाखिर कई स्कैन्स के बाद पता चला कि ये छाती का सरतान ही है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट ने तो मुझे कहा कि आपकी 2 से 3 हफ्ते की ज़िंदगी है। चूँकि मेरी रिब्स में नज़र आ रहा था, दोनों साइड पे रिब्स में और मेरी लेफ़्ट फेमर में भी था, तो पहले तौर पर तो ख्याल, बोन स्कैन कराया तो उसमें नज़र आया तो ख्याल ये था कि मैं आखिरी स्टेज पे हूँ। तो लेकिन पेट स्कैन करने के बाद ये अंदाज़ा उन्होंने हुआ कि शायद ये मेरी बोन्स में कैल्सिफिकेशन है, तो आप सर्जरी करवा के इलाज शुरू करें, चांस लें। कीमोथेरेपी के 8 और रेडिएशन के 4 राउंड्स के बाद एजाज चौधरी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हुए और आज नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 12 लाख खवातीन छाती के कैंसर का शिकार होती हैं, जबकि हर 1000 में से 1 मर्द को इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक मर्दों में इस बीमारी का पता आम तौर पर देर से चलता है, जिसकी एक वजह उनकी जिस्मानी साख्त है। छाती में टिश्यूज की कमी इस मर्ज को तेजी से फैलने में मदद देती है। मर्दों में भी छाती के सरतान का इलाज खवातीन मरीजों की तरह सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन के जरिए ही किया जाता है। औरतों की तरह ही जैसे कि उनका फर्स्ट स्टेशन ऑफ स्प्रेड सबसे पहले इसको बगल में जाना होता है, तो इन लोगों में भी ऐसे होता है। तो यूजुअली हमारे पास जो आते हैं मर्द आम तौर पे अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लेट आते हैं। ज़ख़म बन चुका होता है, स्किन ऊपर से ख़राब हो चुकी होती है, तो इसलिए मर्दों के लिए तो ख़ास पैगाम है कि जो ही उनको अपनी ब्रेस्ट में कोई भी तब्दीली हो, जिसमें कोई जगह सख्त हो जाए या उन्हें लगे कि स्किन अंदर जा रही है या स्किन उभर रही है, तो उनको चाहिए कि वो भी फ़ौरन सर्जन से राब्ता करें और अपने आप को चेक कराएं। पाकिस्तान में मर्दों में छाती के सरतान की शरह आलमी शरह के बराबर है। ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर के तौर पर एजाज चौधरी कहते हैं कि खवातीन के साथ साथ मर्दों में भी इस मर्ज से मुतालिक आगाही मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मर्द ये समझता है कि उसको ये इस किस्म की ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता, तो वो भी गलत फहमी का शिकार है। मैंने जिस सर्जन से सर्जरी कराई उसने 8 इस किस्म की मेल ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी की हुई थी। आज वो एक एक्टिव जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कैंसर से जिस्मानी लड़ाई जीतने के लिए एजाज चौधरी को नफ्सियाती तौर पर भी बहुत मजबूत होना पड़ा।
جب میں اتنے سالوں بعد یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اس یقیناً اس بات کی توثیق کر سکتا ہوں کہ اگر اب نفسیاتی لحاظ سے اگر آپ مضبوط حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے تو آپ کا جسم آپ کی مدد کرے گا علاج میں۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں مریض بریسٹ کینسر کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، ان میں اکثریت خواتین کی ہے، مگر بریسٹ کینسر سروائیورز اور ماہرین کا کہنا ہے کہ مردوں میں یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کہ انہیں یہ مرض نہیں ہو سکتا۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ کورونا وائرس کی وبا نے جہاں پوری دنیا کو متاثر کیا، وہیں لوگوں کو اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع بھی دیا۔ 11 سالہ انوشکا شرما اور ان کی والدہ کو قریب لانے میں بھی کووڈ-19 نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ جب لاک ڈاؤن کے دوران دفاتر اور سکولز بند کر دیے گئے تو انوشکا اور ان کی والدہ نے اپنے گھر کے باہر چاک سے مختلف ڈرائنگز بنانے کا کام شروع کیا۔ یہ ایکٹیویٹی دونوں کے لیے کیسے مددگار ثابت ہوئی، بتا رہے ہیں عمران جدون۔ انوشکا شرما اپنے گھر کے سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنے نئے پڑوس کو سجانے کے لیے ڈرائنگز بنانا پسند کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ اس سے ان کو سکون ملتا ہے۔ I definitely think it's been an escape from reality for me because reality it's not at this point. میرے لیے یقیناً یہ حقیقت سے ایک فرار کی مانند رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو حقیقت ہے وہ خوشگوار نہیں۔ ڈرائنگ مجھے ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں کچھ بھی کرنا ممکن ہے۔ انوشکا کی ماں پرکریتی کہتی ہیں کہ اسکول بند ہونے کے بعد انوشکا خاموش رہنے اور زیادہ تر اپنے کمرے میں وقت گزارنے لگی۔ So I saw her and it was just very, disheartening to see her like this because usually she's very bubbly and she wants to be outside and I would just yell at her, Anushka, go play outside. And she'd be like, who do I play with? I can't play alone. اسے اس طرح خاموش دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ عام طور پر بہت چنچل اور سوشل ہے، لہٰذا میں چیخ کر اسے کہتی کہ باہر جا کر کھیلو، اور وہ کہتی کس کے ساتھ کھیلوں، میں اکیلے نہیں کھیل سکتی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اپنے گھر کے باہر جا کر ڈرائنگ بنانا شروع کر دی۔ جب ہم نے یہ شروع کیا تو ہمارے پڑوسی آ کر ہمارے پاس رکتے اور بات چیت کرنے لگتے، اور ہمیں یہ اچھا لگا کیونکہ ہم سب اس عالمی وبا سے گزر رہے ہیں۔ انوشکا اور پرکریتی دونوں کا کہنا ہے کہ اس چاک ڈرائنگ کی وجہ سے ان دونوں کو بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارنے کا موقع ملا اور وہ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں۔ I do love doing the chalk drawings with my mom. مجھے اپنی امی کے ساتھ یہ چاک ڈرائنگ کرنا اچھا لگتا ہے۔ کورونا سے پہلے وہ اپنے کام میں زیادہ مصروف رہتی تھیں اور شام 5 بجے کے بعد گھر آتی تھیں تو تب دیر ہو جاتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ گزارنے کے لیے مجھے بہت کم وقت ملتا تھا۔ اب یہ ڈرائنگز کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی ہوں اور ہمارا وقت بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ انوشکا اور اس جیسے بہت سے بچے کرونا وائرس کی اس وبا کے دوران اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں، اور بعض ہیلتھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچوں کو پریشانی، اکیلے پن اور ڈپریشن سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، وینا، ورجینیا۔ اور اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اس وقت دوبارہ چونکہ سیکنڈ ویو کرونا وائرس کی شروع ہو چکی ہے تو اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔